चलिए स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा डिफिकल्ट पैसेज. बी रेडी. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Mr. Vice Chairman, sir, on behalf of my party, I rise to support the bill. Sir, the stringent laws in India have restricted the growth, particularly of industrial sector. If you compare the service sector contribution to the GDP with that of the manufacturing sector, the service sector contributes more rather than manufacturing sector because of the stringent laws. Now, through this bill, it is proposed to relax certain conditions. Probably this will contribute to the growth of the GDP. Sir, the service sector has grown annually at the rate of 9% since 2001 and contributed 57% of the GDP in 2012-13, whereas the manufacturing sector only recorded a negligible increase and contributed only 26% to the GDP. Therefore, I sincerely feel that with this amendment bill, the ease of doing business would improve and that would contribute more towards the growth of GDP. The World Bank, in its Ease of Doing Business report, ranked India at a lowly position of 113. So, the labor law reforms would improve the ease of doing business and thus support the Make in India vision. Of course, there are certain concerns. For instance, the bill would have an adverse impact on employment generation because the number of extra hours would go up with this amendment. Apart from this impact on employment generation, there could be some negative impact on workers' health, industrial safety, and workers' productivity. These are the concerns that we have. Even then, this bill needs to be supported because it would contribute to the growth of GDP. Sir, there is another point that I wish to bring to the notice of the Honorable Minister. The government had introduced the Factories Amendment Bill 2014 on 7th August 2014. Subsequently, it was referred to the Standing Committee on Labour and it had submitted its report. That was a wider and a more comprehensive bill. The committee had submitted its report on 22nd December 2014. The bill included a wide range of provisions relating to workers' safety, night shift for women workers, various facilities for workers, etc. However, instead of discussing and passing that bill, the government introduced the Factories Amendment Bill 2016 in the Lok Sabha on 10th August 2016 and hurriedly passed it the same day. Now, instead of considering and passing a more comprehensive bill which was introduced in 2014 by the NDA government itself, why do you want to take some issues out of it, prepare another amendment bill and try to get it passed in both the houses of parliament? In my opinion, the government should have worked towards holistic reforms instead of a piecemeal approach. These are the concerns that we are expressing. Sir, I would request the Honorable Minister to consider these issues and introduce that earlier, more comprehensive bill as early as possible.
Sir, there is another important issue that I wish to bring to the notice of the Honorable Minister. It is mandatory to have one central government industrial tribunal cum labor court in every state, and every state has it. After the bifurcation of Andhra Pradesh into Andhra and Telangana, we had one at Hyderabad, which is now serving both the states. But after the bifurcation, Hyderabad has gone to Telangana and Andhra Pradesh is left with no tribunal cum labor court. So, workers have to go to Hyderabad to resolve their disputes. Hence, I would request the Honorable Minister to kindly consider setting up an industrial tribunal cum labor court in the capital of Andhra Pradesh. Honorable Vice Chairman, sir, I rise to oppose the bill because I was thinking that this Factories Act is an act to protect the employees and workers, but now it is being slowly converted as an act to protect the employers. That is why over time is increased the burden the employees. Sir, already there is a great loss in employment by automation and mechanization in this country. Most of the industries are mechanized and automated. Now, an increase in overtime is mechanizing the human beings. Human beings will be made machines and they have to work more. That is not the way to treat our laborers. This will once again reduce the scope for fresh employment. Even in Tamil Nadu, there are many engineering colleges which are being closed down because engineers do not find jobs. By increasing the overtime, you are closing the opportunity for freshers to get employment in industries. What is the need for increasing the overtime? To do this, they have used the words in the public interest. Can somebody define me what public interest is? The government is talking about the unorganized laborers toiling and working in this country. Sir, when we were in power in Tamil Nadu, we formed about 13 welfare boards for the unorganized laborers who can become members of the welfare boards by paying a small amount. In turn, that amount would be used for the education of laborers and workers who could not work due to sickness or any accident, or for children of workers. Stop. अब आपने इसको लास्ट लाइन को जल्दी से लिखना है, उसके बाद रीड आउट करना है और उसके बाद हम चलते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स पर. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वर्ड दैट इज बिहाफ. ऑन बिहाफ ऑफ द इकट्ठा करने की जगह आप बिहाफ को अलग ही लिखिए ऑन द लाइन, ठीक है. उसके बाद वर्ड आता है इसमें बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है. तो इसमें पार्लियामेंट में ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है. और बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में आगे मेंट भी लगा सकते हो, ठीक है. एल करके मेंट, वो इजी रहेगा ये थोड़ा. और नीचे दो आप लाइनें लगा दीजिए, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. उसके बाद आता है राइज. ऑन द लाइन पे आपने अबव द लाइन लिखना है राइज टू सपोर्ट द बिल, ठीक है. अब आपने क्या ध्यान देना है कि आपने राइज लिखा, राइज के बाद सपोर्ट लिखा, सपोर्ट के बाद डी की टिक लगाओ, उसके बाद बिल लगाओ. यहाँ आई का वॉवल जरूर देना. ये दो टिक लगाने से आपको ये पता लगेगा कि ये जो है ना, ये हमेशा आपको बिल जो है वो ऑलवेज इट शुड बी इन द कैपिटल लेटर, ठीक है. उसके बाद वर्ड हम लिखेंगे एज अर्ली एज पॉसिबल. वेरी इजी वर्ड, ठीक है. इन माई ओपिनियन में आई का वॉवल डालने से ये वर्ड आपका कभी खराब नहीं होगा. उसके बाद स्ट्रिंजेंट आया है. स्ट्रिंजेंट जो है आप ऐसे लिखिए
स्ट्रिंजेंट, ठीक है, स्ट्रिंजेंट एक्शंस आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दीजिए। उसके बाद हम करेंगे सर्टेन कंडीशंस आया, इसी के नीचे आपने कंडीशंस डाल देना, अलग से कौन की बिंदी डाल के करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने सर्टेन लिखा, सर्टेन के नीचे आपने डाल दिया कंडीशंस, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताने जाती हूँ, ये है थ्रू, ठीक है। इस थ्रू वर्ड को आप हमेशा ऊ का वोवल देना, बिकॉज इट विल क्लैश विद द वर्ड देयरफॉर, और देयरफॉर को मोटा ताजा लिखना, ठीक है ना। देयरफॉर ऐसे आगे पीछे हमेशा इसके बिंदी कॉमा रहता है, ठीक है। तो ये आपने ये चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद मैं आपको आगे का वर्ड बताती हूँ, इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड आए हैं। देखो कम से कम आधा पेज, अगर समय नहीं है, नहीं तो पूरा पेज समय है, तो इफ़ यू आर गोइंग फॉर द एसएससी तब भी आपको पूरा पेज करनी चाहिए। लाइन के नीचे लाइन लिख के शॉर्ट हैंड में उसकी तैयारी करो, ठीक है, उससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। उसके बाद वर्ड है सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो आपने अबव द लाइन नहीं लिखना है इसको, ये गलत है, आपने ऑन द लाइन लिखना है। सर्विस लिखा, सर्विस के साथ आपने सेक्टर डाल दिया, सर्विस सेक्टर, ओके, ये ऑन द लाइन है। इसके बाद आपने लिखना है, इसमें वर्ड आया है एक बड़ा प्यारा, ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल, इसमें आपने डालना है कम, ठीक है, कम छोटा रहेगा, फिर आएगा लेबर, ठीक है, लेबर का एल फिर बड़ा आ जाएगा, लेबर के बाद फिर कोर्ट, ये पूरा नाम है इसका, इसमें आपने डैश जरूर डालने हैं। तो सिंपल है, ट्रिब्यूनल आपने डाल दिया, आपने ये ट्रिब्यूनल डाल दिया, ट्रिब्यूनल, ठीक है, कम डाल दिया। उसके बाद आपने क्या डालना है, लेबर के बाद जो आप लेबर डाल रहे हो, लेबर के साथ ही कोर्ट डाल दो, नीचे लाइनें जरूर डालनी है ताकि आपको पता लगे कि ऐसे करके आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट आउटलाइन आई है वो मैं आपको बताती हूँ। वो आया है, देखिए, उसके बाद आया है मैकेनाइजेशन, ठीक है, मैकेनाइजेशन। अब उसके बाद एनुअली में अगर आप ऐसे आप डाल के रखेंगे एल में, तो ये एनुअली बन गया, ठीक है। और बच्चे अगर आप एनवीटी डाल रहे हो तो टी को इसमें भी हमेशा यू का वोवल जरूर दें, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ह्यूमन बींग्स, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको डिक्टेशन में करना है, ईज में ई की बिंदी पहले डाल के रखना, ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है बाइफर्केशन, जो टुकड़े करते हैं, बी फर और केशन ऊपर, और यहाँ बी में आई का वोवल, ठीक है, बाइफर्केशन, बाइफर्केशन, ठीक है। उसके बाद आपका वर्ड आया है, ये आपका वर्ड आया है नेग्लिजिबल, ठीक है, नेग्लिजिबल, ठीक है, ये वर्ड है, इसमें एक ही बिंदी आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने वर्ड लेना है अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, दिस इज द वर्ड नेक्स्ट। देन इट इज सिंसियरली, ठीक है, सिंसियरली के बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट वर्ड बताने जा रही हूँ, एम्प्लॉयमेंट। अब बिलो द लाइन आपने एम डाल दिया, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए ऐसे डाल दो, ठीक है। और जब एम्प्लॉयड आएगा तब आपको ओ का वोवल डाल के ऐसे करना है, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था। और इम्प्लाइड आएगा तो आई का वोवल डाल के काट दो, ये दोनों का फर्क है, ठीक है। ओवर टाइम को आप इकट्ठा कर सकते हो ठीक है। उसके बाद आपने एक और वर्ड इसमें जो आया है, जो आपने टाइपिंग में मिस्टेक नहीं करनी, वो मैं आपको बताती हूँ। वो वर्ड आया है आपका मेक इन इंडिया, ठीक है। मेक इन इंडिया में आपने कैसे लिखना है ये देख लो आप, ये आपका आएगा मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया ऐसे करके लिखना, ठीक है। यानी वो इंडिया का बना हुआ है क्योंकि उसमें, तो आपको वर्ड अलग अलग लिखना है, लेकिन मेक इन इंडिया का डैश डाल देना, ठीक है। उसके बाद वर्ड आया है फॉरेन स्टाफ, इकट्ठा कर सकते हैं हम, और प्रोडक्टिविटी हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, प्रो ऑन दी लाइन पे डी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। आई की बिंदी दोनों तरफ आपने डालनी है, ठीक है। हर इडली को आप ऐसे लिख सकते हो, ई की बिंदी डाल के। उसके बाद आप लिख सकते हो सब्सिक्वेंटली, ठीक है, ये अलग रखना है। उसके बाद वर्ड आया है बच्चे कंप्रीहेंसिव बिल, कंप्रीहेंसिव बिल में ये इसको बी से काट दो और अबव दी लाइन इसको 2 लाइनों से कर दो, ठीक है। और उसके बाद आता है अमेंडमेंट बिल, ठीक है, ये भी आपने हमेशा ऐसे लाइनें डालनी है ताकि आपके वर्ड कभी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। उसके बाद वर्ड आया ट्वाइलिंग, ट्वाइलिंग में ओए का वोवल डालने से ये वर्ड आपका कभी खराब नहीं होगा। तो अब जल्दी से आप इसकी तैयारी कीजिए, और उसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट डिक्टेशन के साथ। और नेक्स्ट डिक्टेशन के बाद फिर हम धीरे धीरे मैं आपको प्रोग्रेसिव की डिक्टेशंस भी दूंगी, एंड ऑल्सो एज वेल एज आई विल गो फॉर द प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस फॉर द लाइन्स। इसलिए आप जितना हो सके इसको शेयर भी करिएगा।